Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing about Mark Twain novel, The Adventures of Huckleberry Finn. So, Mark Twain was an American writer. He was born on 30 November 1835 and died on 21st April 1910. The novel The Adventures of Huckleberry Finn was first published in UK in 1884 and second published in US in 1885. Mark Twain was an American writer. His original name was Samuel Langhorne Clemens. He was famous with his pen name Mark Twain. He was a humorist, entrepreneur, publisher, and lecturer. Twain was raised in Missouri, which later provided the setting for Tom Sawyer and Huckleberry Finn. He had 6 siblings, but only 3 of them survived in childhood. The name of the siblings are Orion, Henry, Pamela, Hannibal, Margaret, and Benjamin. Basically, The Adventures of Huckleberry Finn is the sequel of The Adventures of Tom Sawyer. Both of the novels were set in the town of St. Petersburg, Missouri, on the bank of the Mississippi River. On the first one, The Adventures of Tom Sawyer, in which Tom and Huck were friends and they find a treasure and become rich. So, The Huckleberry Finn is the sequel of the Tom Sawyer. So, this novel is also a satire on attitudes, particularly racism. As a result of that adventure, The Adventures of Tom Sawyer, Huck gained quite a bit of money which the bank held for him in trust. So firstly, we will go through the characters of The Adventures of Huckleberry Finn. Huck was the central figure of the novel. Pap, Huck's father. Tom, friend of Huck. Widow Douglas and Miss Watson were sisters. Jim, Miss Watson's slave. Judge Thatcher, local judge. The Gangerfords, a family. There was another family, the Wilkes family. Silas and Sally Phelps, Aunt Polly. Huck's father, Mr. Pap, was a very cruel and brutal father. He was so drunk as he threatened his child Huck and beat him a lot. So the local judge wanted Huck to be adopted by Widow Douglas so she can make Huck a well-mannered man, a well-civilized person. Although Huck was a boy of 13 years old, he was brought up by his father Pap, but his father was so drunk and was hard fitting into society. So as you know, this is a novel, so there are so many incidents has happened. We will discuss one by one. The first one is Huck was adopted by Widow Douglas. As I told you earlier, because Huck's father was a very cruel and brutal man, so by the help of the judge, Widow Douglas adopted Huck so she can make him a very good civilized person. As Huck was with Widow Douglas and tries to reform himself, his father reappears in the town and claims Huck's money, which he won in the previous novel, The Adventures of Tom Sawyer. The next incident was Huck's father, Pap, kidnapped him. Okay, so Huck's father, Pap, kidnapped him and locked him in a cabin which is across the river Mississippi. Whenever the father, Pap, used to go out, he locked Huck in the cabin. And when he returned home, he used to be drunk
and he beats his own son Huck. So Huck was very well ill-treated by his father. He used to beat him, he used to torture him, and the torture is gone worst day by day. So one day Huck tried to escape himself from that cabin by faking his own death, killing a pig and spreading its blood all over the cabin. So अभी तक के लाइन्स से, अभी तक की बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि ये जो द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन है, ये एक सीक्वल है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर का, जिसमें हुआ क्या था कि टॉम सॉयर में हक और टॉम, जो कि दो फ्रेंड हैं, उन्होंने बहुत ट्रेजर, एक तरह का खजाना पाया था जिससे वो काफ़ी अमीर हो गए थे. सो उसके लिए जो हक के फादर थे वो उस पर क्लेम करते थे, क्योंकि तुम मेरे बायोलॉजिकल चाइल्ड हो तो तुम्हारे पास जो भी मनीज आए हैं, जो भी ट्रेजर आए हैं, उन पे मेरा राइट्स है. बट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, हिज ब्रूटल बिहेवियर, वन ऑफ दैट जज, द लोकल जज, उन्होंने विडो डगलस को कहा कि आप हक को अडॉप्ट कर लो और हक को एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाओ, एक अच्छे इंसान बनाओ, एक अच्छा वेल मैनर्ड ह्यूमन बीइंग बनाओ. ओके, तो क्या होता है, ये चीज़ें चलती रहती है. देन हक के जो फादर हैं पैप, वो दोबारा से टाउन में अपीयर होते हैं और वो फाइनली हक को किडनैप करके ले जाते हैं. कहाँ ले जाते हैं? अक्रॉस द मिसिसिपी रिवर के उस पार. क्यों? क्योंकि विडो डगलस उनको मिलने नहीं देती थी, तो उन्होंने फाइनली हक को किडनैप ही कर लिया. और वो जब भी उस केबिन से बाहर जाते थे तो वो हक को बिल्कुल ही लॉक करके जाते थे, और जब वापस आते थे तो बहुत ही बुरी स्थिति में आते थे, बहुत ही ड्रंक करके आते थे. तो आते थे और उसी दौरान वो हक के साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते थे, उसे बहुत मारते थे. तो हक ने सोचा कि ये चीज़ें तो डे बाय डे और बिगड़ती ही जा रही हैं. तो उसने अपना स्केप, मतलब अपने भागने का प्लान किया. और एक दिन जब उसके फादर उसे बंद करके गए तो उसने एक पिग को मार के उसके ब्लड को पूरे केबिन में इधर उधर लगा दिया, इवन अपने कपड़ों पे भी लगा दिया, और वहाँ से भागने की कोशिश की और वो भाग गया. और जब उसके फादर वापस लौट के आए तो उन्हें लगा कि ओह, हक तो अब नहीं रहा. So finally, Huck escaped from that cabin, and Huck was hidden in Jackson Island in the middle of the Mississippi River. So there was a island, Jackson Island, in the middle of that river. So Huck was staying there, and for staying there, he used, after a few days on that same island, he encounters with Jim. He met Jim, one of Miss Watson's slave. Jim was also ran away from Miss Watson's because he heard that she is selling him to a plantation down the river. Because जिम को पता लग गया था कि जो उसकी मिस वॉटसन है वो उसे कहीं सेल कर रही है, तो जिम इस डर से वहां से भाग के इसी सेम आइलैंड पे वापस आ गया. सो अब क्या होता है, हक मीट जिम एंड दे टीम अप, और वो दोनों अब एक टीम की तरह उस आइलैंड पे रहने लगते. सो आफ्टर सम डेज देयर वाज अ स्टॉर्म केम, अ फ्लड केम, ओके, एंड Huck and Jim spy a long raft and a house floating past the island. They capture the raft and loot the house, finding in it the body of a man who was being shot. Jim refused to let Huck see the dead man's face. So हुआ क्या, जब वो दोनों रह रहे थे तो उसी मिसिसिपी रिवर में एक बहुत बड़ा फ्लड, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया, और उसी स्टॉर्म में एक हाउस बहते हुए चला आया और एक राफ्ट भी. तो उन लोगों ने क्या किया, उस राफ्ट को रख लिया और उस हाउस में जितने भी उनके ज़रूरत की चीज़ें थी उसे लूट लिया. और उसी हाउस में एक डेड मैन था, ठीक है, लेकिन जिम ने हक को रिफ्यूज़ कर दिया उस डेड मैन के फेस को देखने के लिए. बट एक्चुअली द डेड मैन वॉज हक्स फादर, पैप. So Huck and Jim used to live in that blissful island. Blissful means बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकूनदायक.
Huck and Jim are forced to leave after Huck learns from a woman on shore that her husband has seen smoke coming from the island and believes that Jim is hiding out there. Huck also learns that a reward has been offered for Jim's capture. Huck and Jim start down river on the raft, intending to leave it all the mouth of the Ohio River and proceeds up that river by steamboat to the free states. तो जब भी वो लोग वहां रह रहे थे तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन किसी लेडी की आवाज सुनी, हक ने किसी लेडी की आवाज सुनी जो कि जोर जोर से कह रही है कि शायद उनके जो हस्बैंड है उस आइलैंड पे हैं, क्योंकि उसने वहां से स्मोक निकलते हुए देखा था। और हक को भी तब तक पता चल चुका था तो कि जिम है एक स्लेव है, और हक को अब डर लगने लगा था कि एक स्लेव के साथ फ्रेंडशिप करने पे कहीं उसे भी तो नहीं पनिश किया जाएगा, क्योंकि उस स्लेव पे रिवॉर्ड था, बहुत इनाम था। तो हक और जिम क्या करते हैं, उस राफ्ट जो उन्होंने उस बहते हुए पानी से, बहते हुए स्टॉर्म से लिया था, उस राफ्ट से वो लोग ओहियो रिवर की तरफ प्रोसीड करने लगते हैं। कहाँ के लिए? एक फ्री स्टेट के लिए, एक फ्री जगह के लिए, जहां पे ये जो स्लेवरी है ये प्रोहिबिटेड है, जहां पे लोग इंडिपेंडेंट अपनी फ्री लाइफ जी सकते हैं। एंड आफ्टर अ सेवरल डेज ट्रैवल them pass St. Louis and they have a close encounter with a gang of robbers on a wrecked steamboat. They manage to escape with the robbers' loot. और जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे तो उसी दौरान उन्हें एक गैंग ऑफ रॉबर्स मिले थे। ठीक है, वो किसी तरह तो उस रॉबर्स के गैंग से भागने में कामयाब हो गए। एंड ऑन द ट्रैवल डे ड्यूरिंग अ नाइट ऑफ थिक फॉग, और एक टाइम की बात है जब बहुत ही थिक फॉग था, बहुत ज्यादा कुहासा था, उनके ट्रैवल पीरियड की ही बात है ये। हक एंड जिम मिस द माउथ ऑफ द ओहियो एंड एनकाउंटर्स अ ग्रुप ऑफ मेन लुकिंग फॉर स्केप्ड स्लेव्स। और हक और जिम जो ओहियो रिवर की माउथ थी, ये बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी रिवर्स है मिसिसिपी की ही, तो उसको वो मिस कर जाते हैं क्योंकि कोहरा इतना घना था कि उन्हें पता नहीं चला। और वो लोग किससे मिलते हैं जाके? एक ऐसे ग्रुप ऑफ मेन से जो स्लेव्स को पकड़ रहे हैं, जो भी स्लेव्स इधर उधर भाग चुके हैं उनको पकड़ने के लिए ये ग्रुप ऑफ मेन निकला हुआ है, उससे मिलते हैं। हक हैज अ ब्रीफ मोरल क्राइसिस अबाउट कंसीलिंग स्टॉलन प्रॉपर्टी। जिम आफ्टर ऑल बिलोंग टू मिस वॉटसन, बट देन लाइज टू द मेन एंड टेल्स देम दैट हिज फादर इज ऑन द raft suffering from smallpox. So अब तो भाई था कि अब तो हम पकड़े गए, बट जिम ने सोचा कि नहीं, हम कुछ करते हैं। तो क्या किया उसने, हक ने सोचा कि अब हम कुछ करते हैं, तो हक और जिम ने प्लान किया और जिम वही राफ्ट पे लेट गया। एंड हक ने झूठी कहानियां बनाई कि दिस इज माई फादर, ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी बीमारी है जो कि फैलती है। तो टेरिफाइड ऑफ द डिजीज द मैन गिव हक मनी एंड हरी अवे। तो वो जो लोग थे, ग्रुप ऑफ मेन थे जो स्केप्ड स्लेव्स को पकड़ते थे, वो लोग मिलके हक को कुछ पैसे दे देते हैं क्योंकि डर से, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उन्हें भी ये प्रॉब्लम ना हो जाए, और वहां से चले जाते हैं। Unable to backtrack to the mouth of the Ohio, Huck and Jim continue downriver. The next night, a steamboat slams into their raft and Huck and Jim are separated. और कहानी आगे बढ़ती है और देन अगेन जिम एंड हक आगे बढ़ते हैं डाउन द रिवर के लिए। और उसी दौरान क्या होता है, एक स्टीम बोट आता है और वो हक और जिम के राफ्ट से टकरा जाता है और जो राफ्ट रहती है वो टूट जाती है। देन जिम और हक सेपरेट हो जाते हैं। देन हक एंड्स अप in the home of kindly Gangerfords, a family of southern aristocrat, locked in a bitter and silly feud with a neighboring clan, the shepherd's son. The elopement of a Gangerford's daughter with a shepherd's son leads to a gun battle in which many of the families are killed. So हक कहाँ पहुंच जाते हैं? जो गैंगरफोर्ड्स फैमिली थी उनके यहाँ, और उनके यहाँ क्या चल रहा था? एक गन बैटल चल रहा था क्योंकि उनकी बेटी शेफर्ड सन के साथ भाग गई थी। और इसी बैटल में बहुत सारे फैमिलीज के जो मेंबर रहते हैं वो मारे जाते हैं। While Huck is caught up with the feud, Jim shows
up with the repaired raft. और उसी दौरान क्या होता है, जिम ने हक को रिपेयर्ड राफ्ट जो उनका टूट गया था उसे किसी तरह से रिपेयर किया और हक को इशारा किया. हक हरीज टू जिम्स हाइडिंग प्लेस, और हक बिल्कुल बहुत जल्दी में जिम का जो हाइडिंग प्लेस था वहां जाता है. एंड दे टेक ऑफ डाउन द रिवर, और फिर से वो रिवर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं. And after that, Huck and Jim rescue a pair of con men. So con men क्या होते हैं? Con men ना लोगों को ऐसा बेवकूफ बना के उनसे चीजें ऐंठते हैं, जो भी पैसे होती है या फिर जो भी चीजें होती है वो ऐंठते हैं. So after few days travel, Huck और Jim एक con man के पेयर से मिलते हैं. ठीक है. The men, clearly con artists, claim to be displaced English duke, और वो लोग अपने आप को displaced English duke बुलाते हैं. And the long lost heir to the French throne. Powerless to tell two white adults to leave, Huck and Jim continue down the river with the pair of the aristocrats. The Duke and the Dauphin pull several scams in the small towns along the river. Coming into one town, they hear the story of a man, Peter Wilkes, who has recently died and left much of his inheritance to his brothers, who should be arriving from England any day. The Duke and the Dauphin enter the town, pretending to be Wilkes' brother. So आगे क्या होता है, हक और जिम ट्रैवल कर रहे हैं उन दोनों कॉनमैन के साथ. तो एक दिन उन लोगों को न्यूज मिलती है कि एक विल्क्स फैमिली है जिसका जो बंदा है पीटर है वो मर चुका है, और उसने अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है अपने 2 भाइयों के नाम की है, और वो दोनों भाई इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं. और पॉसिबली ये भी न्यूज थी कि उन दोनों को शायद किसी ने नहीं देखा है. देन जो वो 2 कॉनमैन थे वो दोनों विल्क्स के भाई बनके उस टाउन में एंटर होते हैं. विल्क्स 3 nieces welcome the con man and quickly set about liquidating the estate. A few townspeople become spectacle, and Hug, who grows to admire the Wilkes sister, decided to thwart the scam. He steals the dead Peter Wilkes' gold from the Duke and the Dauphin, but is forced to stash it in Wilkes' coffin. Hug then reveals all the eldest Wilkes' sister, Mary Jane. Hug's plan for exposing the Duke and the Dauphin is about to unfold when Wilkes' real brother arrives from England. The angry townspeople hold both sets of Wilkes' claimants, and the Duke and the Dauphins just barely escape in the ensuing confusion. Fortunately the sisters, the gold is found. Unfortunately for Huck and Jim, the Duke and the Dauphins make it back to the raft as Huck and Jim are pushing off. So यहाँ पे क्या होता है, वो दोनों जो कॉनमैन है वो 1 by 1 करके जो स्टेट्स की जो भी चीजें थी, जो भी प्रॉपर्टीज थे उसको बेचना शुरू कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ विल्क्स 3 nieces. ओके. सो वन टाइम क्या होता है, हक ने प्लान किया कि वो उन दोनों के जो भी प्लान्स हैं ड्यूक एंड डॉफिन्स के उसको एक्सपोज कर देंगे, बट किसी तरह वो कामयाब नहीं हो पाया. और उसी दौरान विल्क्स के 2 रियल ब्रदर जो कि इंग्लैंड से आने वाले थे वो उसी समय आ गए. अब क्या, अब तो टाउन के जितने लोग थे उन्होंने उन सबको पकड़ लिया क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो गया था और जो प्रॉपर्टी थी वो गलत हिस्से में, गलत हाथ में जा रही थी. ठीक है. तो किसी तरह ड्यूक और डॉफिन्स, हक एंड जिम वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं. एंड हक एंड जिम जब अपने राफ्ट को पुश ऑफ करते रहते हैं रिवर की तरफ, उसी तरफ ड्यूक एंड डॉफिन भी आ जाते हैं. So on the travel period, in the absence of Hug, the con men sell Jim to a family, local family, since there was a price on Jim's head, although he was a slave and he was also a runaway slave. So the 2 con men, Duke and Dauphins, commit their worst crime ever. They sell Jim to a local farmer, that telling Jim is a runaway for whom a large reward is being offered. Huck finds out where Jim is being held and resolves to free him. At the house where Jim is prisoner, a woman greets Huck excitedly and called him Tom
as Huck quickly discovered the people holding Jim are none other than Tom Sawyer's uncle and aunt. So अब क्या होता है, क्योंकि वो दोनों कॉन मैन थे, तो एक दिन हक के एब्सेंस में उन दोनों ने जिम को एक लोकल फैमिली में बेच दिया, लोकल फार्मर को बेच दिया, और ये भी बोल के बेचा कि जिम जो है एक रन अवे स्लेव्स है और इसके सर पे बहुत इनाम है। और जब हक इस चीज़ को फाइंड आउट करने जाता है कि आखिर जिम अब है कहाँ, उसे कहाँ रखा गया है, तो हक लास्टली फाइंड आउट करता है कि जिम कहीं और नहीं बल्कि अपने फ्रेंड टॉम के आंट और अंकल के ही कब्जे में है। सो ही गोज टू द फेल्फ फार्म, uncle's auntie farm of Silas and Sally, the name, where Jim was kept. Silas and Sally are Tom's aunt and they are expecting Tom. Although they had never seen Tom, they mistake Huck for Tom. Huck plays along. So क्या होता है, Huck Phelps फैमिली के फार्म पे जाता है, खोजते खोजते वो वहां पहुंचता है जहाँ एक्चुअली में जिम को रखा गया। और क्योंकि टॉम के अंकल और आंट जो कि सिलास एंड सैली थे, उन्होंने कभी टॉम को देखा नहीं, तो वो हक को टॉम समझ लेते हैं बाय मिस्टेक। ओके, और हक भी उनके साथ वही चीजें गेम खेलने लगता है कि हाँ मैं टॉम हूँ। ही मीट्स टॉम ऑन द रोड एंड टेल्स हिम एवरीथिंग, और उसी दौरान वो टॉम से भी मिलता है और उसे ईच एंड एवरीथिंग बताता है। टॉम प्लान्स टू एलिबरेट एस्केप इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइंडिंग जिम एंड लेटिंग हिम आउट। अब टॉम और हक क्या करते हैं, ऐसा प्लान करते हैं कि जिम को कैसे एस्केप किया जाए, कैसे बाहर लाया जाए, कैसे उसको फ्री किया जाए। टू मेक थिंग्स मोर एडवेंचरस, क्योंकि ये नॉवेल है और एडवेंचरस नॉवेल है, तो टॉम ने बहुत अलग अलग चीज़ें, बहुत अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स वगैरह बना लिए कि चलो ऐसा करते हैं, जिम को बाहर निकालने में, जिम को फ्री करने में एडवेंचरस चीज़ें करते हैं। देन टॉम ऑल्सो सेंड्स अ लेटर टू सिलास एंड सैली वार्निंग देम ऑफ जिम्स एस्केप। उसने अपने अंकल एंड आंट को एक लेटर भेजा, वार्निंग letter of Jim's escape. When Tom and Huck try to run away with Jim, अब जब तीनों भागने की कोशिश कर रहे हैं, Tom gets shoot in his leg by a gun, और तभी क्या होता है, टॉम को शूट कर दिया जाता है, उसके पैर में शूट कर दिया जाता है गन से। Huck takes him to a doctor. The doctor return the three to Silas and Sally. Huck return, और जब वो लोग डॉक्टर के पास से वापस आ रहे थे तो डॉक्टर ने सिलास और सैली को रिटर्न कर दिया। किसको किसको? हक को, जिम को एंड टॉम को। ठीक है। देन टॉम्स आंट मिस पॉली, टॉम की एक और आंट रहती है, पॉली रहती है, अराइव्स एंड रिवील द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ टॉम एंड हक। और क्योंकि वो हक और टॉम को दोनों को पहले से जानती हैं, तो उन्होंने टॉम और हक के ट्रू आइडेंटिटी को रिवील किया कि ये तो तुमने बाय मिस्टेक जिसको टॉम समझ लिया था, वो एक्चुअली में टॉम का फ्रेंड हक है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द टॉम वेक्स अप, एक्चुअली व्हेन द ऑल वेक्स अप, he reveals that Jim has actually been a free man all along, as Miss Watson, who made a provision in her will to free Jim, died 2 months earlier. Tom had planned the entire escape idea all as a game and has intended to pay him Jim for his trouble. So basically होता क्या है, जब भी वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तभी टॉम ने रिवील किया कि जिम तुम तो एक्चुअली फ्री हो चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि जो तुम्हारी ऑनर थी मिस वॉटसन वो ऑलरेडी मर चुकी हैं 2 महीने पहले। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें इसलिए प्लान की थी क्योंकि मैं इस चीज़ को एडवेंचरस बनाना चाहता था। ओके, तो जिम टेल हक about his father Sally plans to adopt Huck, but Huck reveals that he does not want that and plans to escape in the west. अब जिम क्या करता है, वो हक को बोलता है कि तुम्हें मेरे पापा अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिम बोलता है कि नहीं अब मैं किसी से अडॉप्ट नहीं होगा, और जिम स्केप कर जाता है कहाँ की तरफ, वेस्ट की तरफ। Huckleberry Finn is pen portrait of certain serious problems which baffle solution in America. This novel has also been regarded
as a picaresque fiction in its portrayal of fun, satire, and loose episodes. So that's it for this video lecture. Thank you everyone. Keep enjoying and keep watching.